Hello and good morning to all. We have already seen previous lecture types of windows, classification of windows. Louvered windows तक हमने last time देखा था. Now we will start in today's session metal windows. So exactly what is metal windows? Extensively used in public and residential buildings on account of their strength and lesser cost. एक्सटेंशुअली यूज्ड इन पब्लिक एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स. ज़्यादा प्रमाण में यूज़ होता है पब्लिक बिल्डिंग एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बिकॉज उसका कॉस्ट मिनिमम है. दे आर मेड अप ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा. सो एल्यूमिनियम विंडोज आर रस्ट प्रूफ, ड्यूरेबल एंड रिक्वायर टू मेंटेनेंस एंड पेंटिंग. MS windows मतलब mild steel windows are widely used, made up of angle section, Z section, T section or channel section. They can be fixed either directly to the masonry opening or it may be filled into wooden frame already fixed in the opening. So our next window is bay window. That is the bay window. As you can see in diagram, bay window. बे विंडो क्यों ज़्यादातर यूज़ किया जाता है? बिकॉज उसका मतलब अगर आप एलिवेशन में अगर देखते हैं बे विंडो या मतलब आउटर लुक, उसका जो अपीयरेंस है वो अच्छा दिखता है, उसका जो आउटलुक है वो अच्छा दिखता है. तो इसीलिए बे विंडो का यूज़ ज़्यादातर एलिवेशन गुड होना चाहिए, इसके लिए बे विंडो प्रोवाइड किया जाता है. विंडो व्हाट इज़ नाउ बे विंडो? Windows which projects beyond the face of external wall, having circular, rectangular, triangular or polygonal in plan. They are provided to get increased area of opening for admitting greater light and air, and bay window improve the overall appearance of the building. जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, उसका ओवरऑल अपीयरेंस बहुत अच्छा दिखता है बे विंडो का. उसके थ्रू एलिवेशन जो रहता है बिल्डिंग का वो पूरा चेंज हो जाता है. दैट्स वाई वी इंस्टॉल द बे विंडो फॉर द so that is the bay window as you can see in the diagram. Our next window is corner window. That is the corner window. Corner window is provided in the corner of a room having two faces in two particular directions. Due to this, light and air is admitted from two directions. As you can see in diagram, two perpendicular direction will be get easily from the corner windows. Okay, our next window is dormer window. डॉर्मर विंडो मतलब डॉर्मर विंडो का मतलब ही है जैसे कोई छत है वहाँ पे अगर आपको प्रोवाइड करना है फॉर द वेंटिलेशन पर्पस तो आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? डॉर्मर विंडो. एज यू कैन सी इन डायग्राम में इजीली आपको दिखाई दे रहा है डॉर्मर विंडो. Vertical window provided on the sloping roof for the ventilation and lighting to the enclosed space below the roof. So that is called a dormer window. Now next is gable window. गैबल विंडो भी कहाँ पे जनरली प्रोवाइड किए जाते हैं? जहाँ पर छत प्रोवाइड किया है, स्लैब नहीं है, छत है, स्लोप में छत प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे? गैबल विंडो एंड डॉर्मर विंडो. तो डॉर्मर विंडो जो है वो छत के ऊपर डालेंगे और गैबल विंडो कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? वर्टिकल विंडो प्रोवाइडेड इन द गैबल एंड ऑफ अ पिच रूफ. सो वहाँ पे हम गैबल विंडो प्रोवाइड करेंगे. Our next type or next classification is skylight window. It is provided on sloping roof to admit light.
This window projects above the top sloping surface. Next is fan lights. What is fan light? Fan light windows provided as an integral part of a door or window at its top to admit more air and light into the room. It saves in one wooden sill because the top of the door frame acts like both sill of fan light and head of the door frame. Also only one lintel at the top of the fan light economize the cost of construction because otherwise two lintels are required, one at the top of the door and the second at the top of the window. So that is the fan lights window. Okay, our next topic is ventilators. As you can see in diagram, easily you can see in diagram where is the provided ventilators or for the purpose of ventilation we can provide ventilators. The ventilators are windows of some heights and they are generally fixed at the top of the door or window. दिखाई दे रहा है, देखो डायग्राम में कहाँ पे वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं. डायरेक्टली जो फ्रेम रहता है विंडो के ऊपर जो भी प्रोवाइड किए गए हैं उसको वेंटिलेटर्स बोलेंगे. द वेंटिलेटर्स आर ऑल्सो मूवेबल. कोई जो वेंटिलेटर्स रहता है तो मूवेबल भी आप रख सकते हैं. द वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड विद ग्लास पैनल्स एंड स्टील ग्रिल्स फिक्स्ड इन द वेंटिलेटर्स फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी. Okay, so our next topic is fixtures and fasteners for doors and windows. क्या डोर्स एंड विंडोज़ को अगर फिक्स करना है तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स का हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, fixers and fasteners used for doors and windows are hinges, bolts, locks, handles. Okay, so these are the fixers and fasteners for doors and windows. Hinges, bolts, locks and handles. As you can see in diagram, hinge, various types of hinges and various types of bolts, different types of locks and different types of handles. So these are the fixers and fasteners for doors and windows. Okay, now material used and function of windows, sills and lintels, weather, shade and छज्जा. मतलब अगर जहाँ पे विंडो, सील और लिंटल्स के जगह पे अगर कुछ ऐसे विंडोज़ रखने हैं, विंडो प्रोवाइड करने हैं, जैसे विंडो ग्रिल, सिर्फ ग्रिल ही रखना है तो यू कैन पुट एज अ विंडो ग्रिल्स एज वेल. एंड सीमेंट ग्रिल, जहाँ पे आपको अगर लिंटल के ऊपर वेंटिलेटर्स नहीं प्रोवाइड करना है, डायरेक्टली ग्रिल प्रोवाइड करना है तो यू कैन पुट एज अ विंडो ग्रिल्स और सीमेंट ग्रिल. ये सीमेंट ग्रिल है और ये विंडो ग्रिल है. एंड व्हाट इज लिंटल? लिंटल is a horizontal structure member which is placed across an opening to support the portion of the structure above it. हमने ऑलरेडी यूनिट 1 में देखा है व्हाट इज लिंटल. ओके, एडवांटेजेस ऑफ आरसीसी लिंटल. ओके, मटेरियल्स used for lintel. Material used for lintels are wood, stone, brick, steel and RCC. तो ये सारे जो मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल्स है वो उसके थ्रू हम लिंटल बना के ले सकते हैं. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिकल कम्युनिकेशन. वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा?
staircases, lifts, ramps और moving stairs और accelerators। तो ये सारे जो है वो वर्टिकल कम्युनिकेशंस है। Now what is stairs? As the stairs are the only means of communication between the floors, the position to be allotted to the stairs in a building requires careful consideration depending upon the purpose in each case. In residential buildings, the staircase should be near the front entrance, and in a public building, the position of staircase should be obvious from the main entrance. So staircase आपको सबको पता ही होगा कहाँ पे लोकेशन ऑफ स्टेयर्स, उसका लोकेशन मेन है कहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए staircase को। तो इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग जनरली हम कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग में should be near the front entrance, and in public building the position of staircase should be from the main entrance. टेक्निकल टर्म ऑफ स्टेयरकेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल टर्म्स ऑफ स्टेयरकेस। सो देखेंगे पूरे टेक्निकल टर्म्स ऑफ स्टेयरकेस। फर्स्ट इज बेल स्टेयर, सेकेंड वन इज हैंड रेल, third one is newel post, next one is balustrade, next is vest, उसके बाद है soffit, tread, rise, riser, going, scotia, nosing, headroom, flight, landing, pitch, run and step. So these all are the technical terms of staircase. So what is baluster? Baluster is the vertical member which is fixed between string and handrail to give support the handle, as you can see in diagram. Baluster देखो कहाँ पे है डायग्राम में? The vertical member which is fixed between string and handrail to give support to the handrail. Second one is handrail. Handrail, as you can see in diagram, handrails are fixed at the top of balusters. These are provided to afford assistance and a safeguard to person while going over a staircase. As you can see in diagram, हैंडरेल्स दिखाई दे रहा है, उसका फंक्शन क्या है वो आपको पता है। ओके, नेक्स्ट वन इज न्यूअल पोस्ट। न्यूअल पोस्ट भी डायग्राम में दिखाया है, देखो। न्यूअल पोस्ट आर प्रिंसिपल पोस्ट सपोर्टिंग अ हैंडरेल। जो हैंडरेल्स रहते हैं ना, जो बेलस्टर्स रहता है ना, तो उसका फर्स्ट जहाँ पे स्टेयरकेस स्टार्ट होता है, तो उसका फर्स्ट वाला जो है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होते हैं बेलस्टर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूअल पोस्ट। प्रिंसिपल पोस्ट सपोर्टिंग अ हैंडरेल। न्यूअल्स आर यूज्ड एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ बेलस्टर्स। नेक्स्ट वन इज बैलस्ट्रेड। वो बैलस्टर था, ये बैलस्ट्रेड है। ओके, बैलस्टर क्या है? बैलस्टर वर्टिकल मेंबर है, कहाँ पे फिक्स किया है? स्ट्रिंग एंड हैंडल को सपोर्ट देने के लिए फिक्स किया जाता है। ओके, एंड बैलस्ट्रेड क्या है? बैलस्ट्रेड कंबाइंड फ्रेमवर्क ऑफ हैंडरेल एंड बैलस्टर is known as balustrade. The balustrade offers exceptional opportunities of decorative work. Next one is waist. Waist क्या है? The thickness of structural slab in case of an RCC stair is known as a
waist. As you can see in diagram, देखो waist कहाँ पे है? The thickness of structural slab in case of an RCC stair is known as a waist. Next one is soffits. Soffits. The underside of the stair is known as soffit. देखो डायग्राम में दिखाई दे रहा है where is soffit, एरो किया है, and is generally covered with ceiling or finished with plaster. Next is soffit हो गया. Next is tread. Flat or horizontal upper portion of a step on which the foot is placed for ascending and descending is known as tread. ट्रेड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ध्यान से देखना क्या है ट्रेड. सिर्फ इतना याद रखो, जहाँ पे हम पैर रखते हैं स्टेयरकेस पे, जहाँ पर हम पैर रख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? ट्रेड. फ्लैट और हॉरिजॉन्टल अपर पोर्शन ऑफ अ स्टेप ऑन विच द फुट इज प्लेस्ड फॉर डिसअसेंडिंग और असेंडिंग इज नोन एज ट्रेड. देखो डायग्राम में भी दिखाया है वेर इज ट्रेड. नेक्स्ट इज राइज. द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द अपर सरफेस ऑफ टू सक्सेसिव ट्रेड इज नोन एज राइज. मतलब दो ट्रेड के बीच वाला जो हाइट रहती है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस जिसको बोलेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द अपर सरफेस ऑफ टू सक्सेसिव ट्रेड. टू ट्रेड के बीच वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस रहता है उसको क्या बोलेंगे? राइज. नेक्स्ट इज राइजर. ये ट्रेड एंड राइज अच्छे से देखो, बहुत आएंगे नेक्स्ट. इसमें बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग में भी बहुत बार आने वाला है वो. नेक्स्ट इज राइजर. इट इज द वर्टिकल और फ्रंट मेंबर ऑफ द स्टेप्स which is connected to treads is known as a riser. Next is going. Going or run of a step is the horizontal distance between the face of two risers. देखो going भी आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ठीक है. नेक्स्ट इज स्कॉटिया. इट इज द मोल्डिंग प्रोवाइडेड अंडर नोसिंग टू ब्यूटिफाई द एलिवेशन ऑफ द स्टेप्स. मतलब वो एक डिज़ाइन रहती है. देखो डायग्राम में दिखाई दे रहा है स्कॉटिया कहाँ पर है. वो एक लुक, अच्छा लुक लगे एलिवेशन पर्पस के लिए दिया गया है. इट इज़ द मोल्डिंग प्रोवाइडेड अंडर नोजिंग. नाउ द व्हाट इज नोजिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोजिंग? द आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ अ ट्रेड इज टर्म एज नोजिंग. मतलब गोइंग के बाद, गोइंग के पहले वाला जो डिस्टेंस पार्ट रहता है, एज जिसको हम बोल सकते हैं, द आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ अ ट्रेड इज टर्म एज नोजिंग. नोजिंग इज यूजुअली राउंडेड टू गिव गुड आर्किटेक्चरल इफेक्ट टू द ट्रेड एंड मेक द स्टेयरकेस इजी टू negotiate. Our next term is headroom. The vertical distance between the nosing of one flight and the bottom of flight immediately above is known as headroom. Vertical distance between the nosing of one flight and the bottoms of lights immediately above is known as headroom, and it should be of sufficient value so as not to cause any difficulty to the person using the stairs. मतलब हेडरूम कहाँ पे हम जनरली प्रोवाइड करेंगे? टेरेस है, बराबर है, या डायरेक्टली एक फ्लोर से तुम दूसरे सेकंड फ्लोर पे आ रहे, तो सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे स्टेयरकेस पूरे ख़त्म हो रहे, तो वो पूरे वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे जनरली? हेडरूम. नेक्स्ट टर्म इज फ्लाइट. अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विदाउट एन इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म. मतलब जैसे एक फ्लाइट में सपोज 1 to 10 स्टेयरकेस है, तो वो पूरे स्टेप्स को क्या बोलेंगे? फ्लाइट. नेक्स्ट इज लैंडिंग. लैंडिंग
means flat platform at the head of serves of steps is known as landing. लैंडिंग क्या है? जैसे एक फ्लाइट खत्म हुई और उसके बाद सेकंड फ्लाइट है, जैसे 1 to 10 स्टेप्स खत्म हो गए, 1 to 10 स्टेप्स को हम क्या बोलेंगे? फ्लाइट. तो फर्स्ट फ्लाइट खत्म होने के बाद थोड़ा सा स्पेस रहता है, राइट, जहाँ पे पर्सन रेस्ट ले सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लैंडिंग. वो प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलेंगे? लैंडिंग. ओके. नेक्स्ट इज पिच. PITCH. पिच, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of the stair which the floor is known as pitch of the staircase. मतलब जैसे staircase को एक एंगल पे हम प्रोवाइड करते हैं, बराबर है. डिज़ाइन अगर करेंगे तो एक एंगल के ऊपर हम staircase को बनाएंगे, तो वो जो एंगल हम देते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द स्टेयर, तो वो एंगल को क्या बोल सकते हैं? पिच. नेक्स्ट इज रन. The total length of a stair in a horizontal plane is known as run. And steps अभी आपको पता है. steps जनरली steps क्या रहता है वो तो आपको पता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे types है. Steps is a combination of a tread and a riser supported by strings. Okay, the types of steps आप देख सकते हैं. टाइप्स ऑफ स्टेप्स: बुलनोज स्टेप, उसके बाद कमांडो स्टेप, उसके बाद राउंड एंडेड स्टेप. तो ये जितने भी स्प्लिट स्टेप, तो ये जितने भी टाइप्स के आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, वो सारे स्टेप्स अलग अलग टाइप्स के हैं. जैसे बुलनोज स्टेप्स की अगर बात करें, तो बुलनोज स्टेप्स हम क्यों प्रोवाइड करेंगे? बुलनोज स्टेप सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द फेस ऑफ न्यूअल एंड हैज वन और बोथ हैंड्स राउंडेड. मतलब देखो उसका जो भी एज है वो राउंडेड है, बराबर है. तो कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? बॉटम ऑफ फ्लाइट. प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द फेस ऑफ न्यूअल. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बुलनोज स्टेप. बुलनोज स्टेप. फिर नेक्स्ट है कमोड स्टेप. कमोड स्टेप हैज अ कर्व राइजर एंड ट्रेड. देखो उसका राइजर भी कर्व में जा रहा है और ट्रेड भी कर्व में जा रहा है, जिसको बोलेंगे कमोड स्टेप्स. उसके बाद है राउंड एंडेड स्टेप. राउंड एंडेड स्टेप्स इज सिमिलर राउंड एंडेड स्टेप इज सिमिलर टू बुलनोज स्टेप except that its end or ends are semicircular in top view. मतलब वो सेम ही है, बुलनोज स्टेप के जैसा ही है, लेकिन उसका जो एंड्स जो है, मतलब ट्रेड का जो एंड है, तो वो सेमी सर्कुलर है टॉप से अगर आप देखेंगे तो. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज स्प्लेड स्टेप. लास्ट वन इज स्प्लेड स्टेप्स. तो स्प्लेड स्टेप क्या है? स्प्लेड स्टेप हैज़ वन एंड और बोथ हैंड स्प्लेड इन टॉप व्यू. अगर आप टॉप से देखेंगे तो उसका वन एंड और टू मतलब बोथ हैंड्स जो भी है, तो वो कैसा दिखाई देगा? स्प्लेड के जैसा दिखाई देगा. ठीक है. अभी आप जैसे डायग्राम्स में देखेंगे ये टाइप्स ऑफ स्टेप्स के, तो उसमें देखो क्या क्या और है. विंडर्स है, काइट विंडर्स है, डांसिंग स्टेप्स है, फ्लायर है, तो वो सब क्या है वो हम देखेंगे. व्हाट इज एग्जैक्टली विंडर्स? विंडर्स आर टैपरिंग स्टेप्स which are used for changing the direction of a stair. They are usually triangular in top view and radiate from a point which is usually situated at the center of view. The central winder of series is called the kite winder. Winders are used only in exceptional
cases. These are provided for spiral or circular stairway. So you can see in diagrams what is kite winder and what is winders. Okay. So in today's session we have already seen what is vertical communication. In vertical communication, how you will classify the vertical communication. स्टेयर्स के रिलेटेड हमने पूरे टेक्निकल टर्म्स देखे, व्हाट इज स्टेयर्स वो देखा. अभी कल रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्टेयर्स हम देखेंगे. रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्टेयर्स, टाइप्स ऑफ स्टेयर्स, वो पूरा कल के सेशन में देख लेंगे. तो टाइप्स ऑफ स्टेयर्स अगर ख़त्म हो गया तो आपका यूनिट 4 फिर ख़त्म हो जाएगा. मतलब इसके बाद एक ही लेक्चर में पूरा यूनिट 4 ख़त्म हो जाएगा. ओके, थैंक यू.